Assalamualaikum grade 7. Hope you all are fine. We are doing unit 7 Sultan Ahmed Masjid. We have read so far that who started the construction of Blue Masjid and whose region the construction was completed and for what purpose does a heavy iron chain hang there, and we have also got to know about the interior of the Sultan Ahmed Masjid. Today we will complete this chapter. Paragraph number 7. The upper level of the interior is adorned with the blue paint. Upper level. So we have already know that what does interior part include, what type of flowers and what type of paints and what type of designs are there in the interior part. So now we are going to read that what type of designs and what type of things upper level include. तो upper level के interior में भी blue paint है. Adorn means decorated, so blue paint is also on the upper level of the interior. More than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminate it with their glow. More than 200 stained glass. Stained glass means dyed glass. जो stained का मतलब ये नहीं कि उस पर दाग धब्बे होते हैं. stained glass मतलब glass windows जिस पे designs होते हैं, जिस पे कोई भी flowers या कोई भी design paint से होता है. With intricate means complicated. Intricate means complicated. मुश्किल किस्म के designs जो होते हैं. Designs allow natural light. उन डिज़ाइंस वो इस किस्म के फ्लावर्स बने हुए हैं कि बीच बीच में से उनमें से जो है ग्लास के जो अपनी जो ग्लास है उसमें से लाइट अंदर आती है टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, जो कि उसके इंटीरियर पार्ट को रोशन करती है. एंड द चैंडलर्स जो फानूस होते हैं जो ऊपर लटके होते हैं छत के साथ, उनको फानूस कहते हैं. फर्दर इल्यूमिनेट. इल्यूमिनेट मीन्स लाइटन अप, रोशन करते हैं. इट विद देयर ग्लो, यानी अपनी रोशनी के साथ, अपनी ब्राइटनेस के साथ फानूस उसको इंटीरियर पार्ट को रोशन कर देता है. The decorations include ayat from the Holy Quran. So there are ayats written on the upper level of the masjid and interior parts. Maybe there are ayat written on walls. The floors are covered with carpets. और तमाम जो floors हैं मस्जिद के वो carpets के साथ covered हैं. The most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. मिहराब वो होता है जो किसी भी मस्जिद के ऊपर बना होता है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे सामने मिहराब बना होता है. मिहराब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंटीरियर पार्ट ऑफ मस्जिद का. इंटीरियर यानी इनसाइड पार्ट ऑफ द मस्जिद. और वो मिहराब जो है बहुत ही फाइनली कार्व्ड मतलब बहुत तराशा हुआ, बहुत ही खूबसूरत किस्म के मार्बल से बना हुआ है. टू द राइट ऑफ द मिहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट. एक स्टेज टाइप है मिहराब की राइट साइड पे जो कि बहुत ही रिचली मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म की चीज़ों से डेकोरेटेड है. द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट crowded, everyone in the masjid can hear and see the imam. Masjid is designed in this way that whoever is in the masjid and wherever part he is at, he can listen and see the imam of masjid. यानी कोई भी किसी भी मस्जिद के किसी भी पार्ट पे होगा, कोई भी बंदा इस तरह का डिज़ाइन है उस मस्जिद का कि किसी भी पार्ट पे अगर कोई भी बंदा नमाज़ पढ़ रहा होगा या खड़ा होगा तो वो इमाम को सुन भी सकता है आसानी से और देख भी सकता है. The royal room is situated at the southeast corner. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. Royal room जो कि शाही कमरा है is situated at the southeast corner of the masjid. Southeast corner पे बना हुआ है रॉयल रूम मस्जिद के. इट हैज़ इट्स ऑन पल्पिट दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस. जेड एक किस्म का पत्थर होता है एंड रोजेस विद
with roses and jade. That stage is decorated, जो रॉयल रूम का है. द ब्लू मस्जिद है 6 मीनारेट्स. 6 मीनार हैं ब्लू मस्जिद के. मीनार वो होते हैं जो मस्जिद के ऊपर इस तरह गोल गोल किस्म के, गोल शक्ल के होते हैं, उनको मीनार कहते हैं. और ब्लू मस्जिद के 6 मीनार हैं. 4 minaret stand, one each at the 4 corners of the masjid. Each of these pencil-shaped minarets had 3 balconies, while the others 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. Out of these 6 minarets, 4 stand, one each at the corners. यानी मस्जिद के चारों कोने पे एक एक मीनार है और हर एक मीनार जो पेंसिल शेप्ड है, उन हर एक मीनार की 3 बैल्कनीज़ है. यानी हर मीनार की अलग अलग 3 बैल्कनीज़ है. और जो बाकी 2 मीनार बच गए हैं वो जो फोर कोर्ट है, जो कर्ट यार्ड है, जो फ्रंट पार्ट ऑफ मस्जिद है वहाँ पर हैं और उनके सिर्फ 2 बैल्कनीज़ हैं. In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to hear the call to the evening namaz. जो इवनिंग टाइम में है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट और तुर्क्स यानी जो वहाँ के नेटिव्स हैं वो जमा होते हैं मस्जिद के सामने पार्क में और मस्जिद से आने वाली इवनिंग यानी शाम की अजान को सुनते हैं और वहाँ पे नमाज भी अदा करते हैं. द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद lights and so are the hearts of the believers with divine love. Flooded means with lights, मतलब लाइट से भरी हुई है मस्जिद. और इसी तरह जो बिलीवर्स हैं, जो अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाले हैं, उनका दिल डिवाइन लव यानी कि दीन की मोहब्बत और अच्छी इखलाक से भरा हुआ है. दो Much has been lost of Blue Masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. That means there are many things that are not part of Masjid anymore. Masjid has lost many things. Maybe Masjid, its architecture, maybe its architecture has been ruined or something else. या हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें से ख़राब हो गई हों, लेकिन लोगों का जो प्यार है मस्जिद के लिए, विजिटर्स का, वो अभी तक वैसा है. द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. मस्जिद को अभी तक मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड यानी अभी तक लोग बहुत ही ज़्यादा लोग तादाद में आते हैं और विज़िट करते हैं. बहुत लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसके आर्किटेक्चर को अप्रिशिएट करते हैं और ये दुनिया के बहुत ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले यादगार में से, ये बहुत ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले मेमोरियल्स में से एक है. सो वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 7. टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर. दैट्स ऑल फॉर टुडे.